Hello everyone, welcome to the YouTube channel Agri Study with Tasif. So let us discuss today about the diseases of honeybee. Fruits suffer from variety of diseases. Loss of brood affects the colony strength. So जब diseases and pests से जब honey bees का जो colony infect हो जाता है, so colony strength reduce हो जाता है, yield reduce हो जाता है, and it will spread to other brood, other boxes also, other honeybee hives also. So adult bees are not affected by brood diseases, but they can spread the causal organisms. So जो brood के diseases है, it will spread from brood to brood only, but it is carried by the adult honeybees. So adult honeybees infect नहीं होते इस diseases से, but it will spread this infection to the broods. So brood diseases of honeybees and other जो protozoan bacterial fungal viral and mite diseases and the disorders of honeybee. So let us go through that. So list of diseases, that is protozoan disease, that is amoebic disease. It is caused by Malpighiamoeba mellifaciae. Bacterial diseases, American foul brood disease and European foul brood disease, and the fungal disease, that is chalk brood or stone brood disease, and nosema, that is nosemosis, caused by Nosema ceranae. Viral disease, thigh sac brood virus, acute virus and chronic bee paralysis, acute and chronic bee paralysis. And diseases caused by mites, that is acarosis, it is caused by tracheal mite, and varroasis, it is caused by varroa mite. Disorder, it is one major disorder is there, that is colony collapse disorder. चलिए डिस्कस करते हैं एमीबिक डिजीज़. एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ कॉज्ड बाय Malpighiamoeba mellifaciae. So it occurs majorly, or this disease is very dominant in the April to May months, April to May. And symptoms will be similar to that as nosemosis, which is caused by Nosema ceranae. Abdomen of the infected worker will become swollen. So in this disease, imagine this is a honeybee, normal honeybee. If its abdomen is normal, infected honeybee's abdomen will be slightly swollen. So this is the infected condition. The bees get infected by ingesting the cyst which accumulate in the posterior end of the midgut or in the rectum. So जो infected bees में let me show you. So these are the cyst. So abdomen इसलिए मोटा हो जाता है ड्यू टू द accumulation of the cyst. ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो राउंड जो है, दे आर दी सिस्ट. ये सिस्ट मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में एंड इंटेस्टाइन्स ऑफ द हनी बी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड द एब्डोमेन ऑफ द हनी बी विल बिकम स्वोलन. जब ये स्वोलन हो जाता है, जो सिस्ट होते हैं, बाय एक्सक्रीटा व्हेन इट विल बी रिलीज्ड आउट, एंड व्हेन इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन, व्हेन दिस cyst are accidentally, knowingly or unknowingly, when it is consumed by the other honeybees, so they will transmit this disease again. So they will transmit the disease. Only way to control this is proper hygiene. You have to maintain the proper hygiene of the colony, and you have to always equipments and the boxes, all the frames by 2% carboxylic या carbolic acid, and you have to transfer the fumigated box. You have to do proper fumigation before installing. So next disease, this is a bacterial disease, that is American foul brood disease. It is a deadly disease in honeybees. It is caused by Penibacillus larvae. It is a bacterium, and it is also called it can be also called as the Bacillus larvae. It is a bacterial diseases, especially on the brood, only on brood, and scattered brood and sunken cappings are the typical symptoms. So
when you see in this image, sunken cappings. So when you see in this image, see this image, it has a sunken cap. The cap slightly goes, it has a small depression towards downward, and the diseased larvae turn dark brown in color and ropey mass, and it causes a foul smell. As it is a bacterial disease, of course it will have a foul smell during its infestation, and when this disease will infect the brood, जब ये infestation होता है इस बैक्टीरिया से, तब ब्रूड स्लोली ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में चेंज होने लगता है, एंड कम्प्लीटली ऐसे बन जाता है, द ब्रूड कम्प्लीट से बिकम स्टिकी. जब आप एक मैच स्टिक से आप जब उसको डिक करेंगे, एक स्टिकी रोपी लाइक मास बनेगा. सो जब आप इसको एक स्टिक से ऐसे निकालेंगे, इट बिकम्स अ रोपी लाइक मास एंड फाउल स्मेल एमिट करेगा, एंड द लार्वा ड्राइज आउट इनटू ब्रिटल स्केल स्टिकिंग टू द सेल वॉल. जब ये फर्दर जब सूख जाता है, इट विल बिकम ब्रिटिल, एंड जो ये लार्वल स्टिकी मास है, इट विल गेट स्टिक्ड टू दी cells, and it is the most widespread and destructive of the honeybee brood diseases. बहुत widespread and very destructive disease है. It affects the queen, drone and worker larvae alike, turn dark brown and later changes into sticky mass producing foul smell. So queen, drone and worker larvae जो उनका brood जब develop होता है, it will infest them and it will eventually reduce the population. चलिए अब डिस्कस करते हैं इट्स मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज़ बर्निंग ऑफ द इन्फेस्टेड कूम्स. सो इसका मेन थिंग है, मेन मैनेजमेंट है. जब आप ये इन्फेस्टेशन देखेंगे, यू हैव टू रिमूव द इन्फेस्टेड कूम्स एंड आपको उसको जला देना चाहिए. एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड हाइड्रोक्लोराइड टेरामाइसिन and tylosin tartrate. So you have to use this antibiotics. ये एंटीबायोटिक्स आप शुगर जो उसको सिरप प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल फीड जब करते हैं, उसमें मिलाकर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में जितना वो रिकमेंड करते हैं आपको, उसमें मिलाकर आप फूड के थ्रू यू कैन प्रोड्यूस टू द हनी बीज. एंड डस्टिंग द combs with sulfathiazole powder, dipping the hive partition hot paraffin wax or a 3% sodium hypochlorite solution bleach. अब डिस्कस करते हैं यूरोपियन फाउल ब्रूड के डिजीज़ के बारे में. It is caused by Melissococcus plutonis, Bacillus pluton, and even Streptococcus apis. The primary infection is caused by the Melissococcus plutonis and secondary rotting by Bacillus pluton, Streptococcus faecalis and Bacillus alveoli. जो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है पहला जो होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय मेलिसोकोकस प्लूटोनिस, इससे कॉज होता है. एंड जो सेकेंडरी रॉटिंग होता है, जो सेकेंडरी जो होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस प्लूटोन, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस एंड बैसिलस एलवाई. सो ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स द मिड गट ऑफ द लार्वल ब्रूड. जनरली ये लार्वा का ब्रूड, लार्वल ब्रूड का मिडगट इन्फेक्ट करता है, मिडगट. एंड इन्फेक्टेड कूम सेल्स, कूम smells like sauerkraut. Sauerkraut is finely cut raw cabbage that has been fermented by various lactic acid bacteria. So इसका जो स्मेल होता है, जो इसका एमिशन होता है फाउल स्मेल, इट स्मेल्स लाइक sauerkraut स्मेल. एंड sauerkraut
का मतलब ये है कि जब फाइनली कट कैबेज, हम कैबेज को अच्छे से जब चॉप करते हैं एंड उसको फर्मेंट करते हैं बाय वेरियस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसमें से, उस मैटर में से एक स्मेल रिलीज़ होता है. सो दैट इज़ एक्चुअली वो प्रोडक्ट है सौक्रत, एंड उसका स्मेल जो रिलीज़ होता है सौक्रट लाइक स्मेल. एंड इन्फेक्टेड कूम स्मेल्स, कूम स्मेल्स लाइक सौक्रत. मैंने बताया सौक्रत क्या है. एंड द डिजीज्ड लार्वे टर्न्स येलो एंड देन ब्राउन एंड देन द ट्रैकियल सिस्टम्स बिकम्स विजिबल. पहले जब वो इन्फेक्शन होता है, जो डिजीज लार्वे है, पहले ये येलो बन जाता है एंड उसके बाद ब्राउन कलर होके उसका जो ट्रैकियल सिस्टम है कम्प्लीटली विजिबल हो जाता है वो ब्राउन बॉडी पे. एंड लार्वा जो डाइज इन अ कॉइल्ड स्टेट कॉजिंग द फाउल स्मेल. एंड लार्वा जब मर जाता है इट विल बी इन अ कॉइल्ड स्टेट, ऐसे इट विल बी इन अ कॉइल्ड स्टेट एंड इट विल डाई. And yellow white larvae finally melts down into the bottom of the cell. So yellow जो white larvae हैं ये फाइनली नीचे बॉटम ऑफ द सेल पे कम्प्लीटली मेल्ट होके सेटल डाउन हो जाता है. एंड सेल्स आर पोरली कैप्ड एंड मिक्सड विथ नॉर्मल सेल्स. एंड इन कॉलोनी एरेटिक और अनइवन ब्रूड पैटर्न विजिबल होता है. एंड क्योंकि अनइवन ब्रूड पैटर्न इसीलिए है क्योंकि ये सारा इन्फेक्शन हो जाता है इसी वजह से. एंड स्ट्रेस, बैड वेदर एंड स्टोरेज ऑफ द फूड सपोर्ट्स द स्प्रेड ऑफ दिस पैथोजन. जो बैड वेदर जब है, ओके, एंड जब स्टोरेज ऑफ द फूड जो शॉर्टेज ऑफ द फूड, जब फूड की शॉर्टेज हो जाते हैं इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली लेस हो जाता है. बैड वेदर, स्ट्रेस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से इस पैथोजन का स्प्रेड होना ज़्यादा हो जाता है. नाउ लेट अस डू द कंपैरिजन ऑफ अमेरिकन फाउल ब्रूड एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज़. जैसे मैंने बोला, जब अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज़ का इन्फेक्शन होता है, ब्रूड को जब हम डिग इन करते हैं मैच स्टिक या कोई भी पतले से स्टिक से, इट फॉर्म्स अ रोपी लाइक मास. आप देख सकते हैं एक रोप काइंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज़ में ये पहले द लार्वा येलो हो जाता है, देन ब्राउन कलर होके उसका जो ट्रैकियल सिस्टम है कम्प्लीटली विजिबल हो जाता है, कम्प्लीटली मेल्ट डाउन होता है, फाइनली वाइट कलर हो जाए, येलोइश वाइट हो जाता है मास. एंड देन इट विल सेटल डाउन, ये मेल्ट हो जाता है कम्प्लीटली कॉइल्ड कंडीशन में एंड बॉटम ऑफ द सेल पे ये सेटल हो जाता है. सो यू कैन सी here येलोइश वाइट लार्वे आपको दिखते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं. एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज़ का इन्फेक्टेड स्टेज ओनली लार्वे है, ब्रूड है. अब इसका यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज़ का मैनेजमेंट देखते हैं. सो यू हैव टू यूज़ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड. ये एक एंटीबायोटिक है. यू कैन यूज़ दिस इन दी फूड. जो शुगर सिरप उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें मिलाकर दे सकते हैं. एंड द शुक स्वार्म टेक्निक ऑफ बी हस्बेंड्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू effectively control this disease. ये शुक स्वार्म टेक्निक एक टेक्निक है यूरोपियन फाउल ब्रूड डिजीज़ के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं टू मैनेज दैट. एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, आप एक स्टेरलाइज्ड और फ्यूमिगेटेड न्यू हाइव लेते हैं, न्यू हाइव बॉक्स. एंड उस हाइव बॉक्स को हम नीचे के प्लेस में रखते हैं एंड ऊपर इन्फेक्टेड बॉक्स रखते हैं एंड उसको उल्टा रख देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन ये है स्टेरलाइज्ड बॉक्स एंड उसके ऊपर हम इन्वर्ट करके इन्फेक्टेड बॉक्स रखेंगे. एंड हम इस बॉक्स को जर्किंग मूवमेंट से हिलाएंगे. वी मूव दैट एंड उस टाइम पे जो इसमें से जो हेल्दी जो अडल्ट्स हैं वो इसमें चले जाएंगे.
एंड वी विल डिस्कार्ड दिस। जो इन्फेक्टेड बॉक्स होता है लेटर हम इसको डिस्कार्ड करके जला देंगे, एज इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। जो भी उसके फ्रेम से वी विल डिस्ट्रॉय दैट। एंड ये जो स्टेरलाइज्ड बॉक्स में जो बीज है, हेल्दी बीज, हम उसको फर्दर उसको ये एंटीबायोटिक्स दे के एंड उसको प्रॉपर हाइजीन के साथ हम मैनेज करेंगे तो ये डिजीज़ का एंड। द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ चॉक ब्रूट डिजीज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द काल्क ब्रेड डिजीज़ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एस्कोस्पेरा एपिस। सो इस डिजीज़ में जो ये फंगाई इन्फेक्ट करता है ब्रूड्स को, इस फंगल का मास कम्प्लीटली इट विल कवर द लार्वल बॉडी। ये है लार्वा, you can see this is a larva, and this fungus is completely surrounding and it is growing around the larval body, complete white mass में white and chalky mass की तरह completely it will be visible like a chalk। so इसलिए इस disease को chalk brood disease बोलते हैं। एंड अडल्ट बीज यूजुअली दे विल टेयर डाउन द ब्रूड सेल कैपिंग। जो अडल्ट बीज होते हैं, वर्कर बीज, ये क्या करते हैं, जो डिजीज्ड लार्वे होते हैं उसके जो सील होते हैं उस सील को हटाकर दे विल टेयर द सील एंड वो इन्फेक्टेड ब्रूड्स को बाहर निकालते हैं। जनरली दिस इन्फेक्टेड लार्वे विल बी सीन ऑन द हाइव फ्लोर पे दिखते हैं एंड इवेंचुअली दिस हनी बीज विल स्लोली रिमूव द इन्फेक्टेड ब्रूड एंड थ्रो आउट ऑफ द हाइव, या उसको प्रोपोलिस से कम्प्लीटली जब उठा नहीं पाते हैं कम्प्लीटली प्रोपोलिस से सील कर देते हैं उस लार्वे को। एंड स्मॉल और अंडर स्ट्रेस कॉलोनीज आर वेरी ससेप्टेबल। जो स्मॉल कॉलोनीज होते हैं एंड ससेप्टेबल कॉलोनीज़ है, मतलब जब स्ट्रेस एंड फूड ज़्यादा नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फूड है एंड टेम्परेचर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जब फ्लक्चुएटिंग, फॉर एग्जांपल ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा है हाइव बॉक्स के अंदर, उस टाइम पे ये फंगल डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होता है। एंड हमें ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैनेज करने के लिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन होकर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो विल बी मेंटेन प्रॉपरली एंड इस इन्फेक्शन का स्प्रेड कम होता है। इन्फेक्शन बाय दिस डिजीज़ विल बी not severe also, and then requeening with the young and vigorous females from chalk brood free colony can help in minimizing the disease। so हमें requeening करना चाहिए। so नया क्वीन को, ओल्ड क्वीन को न्यू क्वीन से रिप्लेस कर कर you have to keep the honeybees, that is यंग एंड विगरस फीमेल्स वर्कर बीज को हम रिप्लेस करेंगे तो वी कैन मिनिमाइज दिस डिजीज़। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टोन ब्रूड डिजीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय Aspergillus fumigates, Aspergillus flavus and Aspergillus niger। It infects the alimentary canal of the broods and even the adults। so elementary canal of the brood and adult को infect करता है and dead larvae turn black and become difficult to crush, hence the name stone brood। so ये dead larva after infestation it will become dark in color, थोड़ा discoloration होता है and then it will become stone, it will be become like a stone and it is hard to crush that larvae। fungi erupts from the integument of the larva and forms a false skin and larvae are covered with powdery fungal spores। so ये जो fungi है उसके एलिमेंट्री कैनाल एंड उसकी इंटेग्यूमेंट से बाहर निकलता है पंचर करके उसका इंटेग्यूमेंट एंड ऊपर एक फॉल्स स्किन क्रिएट करता है एंड because of that false skin the brood becomes more hard। sterilization of the hive with formaldehyde fumes can help in minimizing the disease। it is also called as the nosema disease। it is caused by Nosema apis and Nosema ceranae।
सो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि मेल्फिजमीमा मेलिफेसिया जो एमीबिक डिजीज़ है उसके और नोज़ेमोसिस के सिम्टम्स सिमिलर हैं. इट इज़ अफेक्टेड वर्कर्स अनेबल टू फ्लाई एंड क्रॉल अप टू द हाइव एंट्रेंस. सो अफेक्टेड वर्कर्स जो है दे आर अनेबल टू फ्लाई एंड दे ओनली क्रॉल टिल द हाइव एंट्रेंस. द रीज़न इज़ उसका एब्डोमेन कम्प्लीटली स्वेल हो जाता है and the worker bee will face this dysentery. Fecal spots are visible at the hive entrance and it infects the intestinal tract of adult bees. It is a serious adult disease and bees become dysenteric with distended abdomen with feces shining and swollen abdomen. जो adult जो bees है उसका abdomen shiny and completely swollen हो जाता है. And affected worker bees have disjointed wings and are found crawling near the hive entrance. जो उसके विंग्स हैं वो झड़ जाते हैं and the abdomen becomes swelled and they will be crawling near the hive entrance because उसके wings नहीं होते हैं and they cannot fly. And on dissection of the infected bees, the midgut intestine is seen swollen and dull grayish white in color or as it is full of spores. So as you can see the image, the hindgut of the infected worker bee जो आप देख रहे हैं, this is the infected जो midgut and this is the normal midgut. So you can see the difference. So the infected midguts become swollen. See this is normal, this is narrow, but the infected is slightly swollen than compared to the normal midgut. And color भी change होता है, dull grayish in color and grayish white in color. So if you see, this is white in color and this is a normal its original color and it will be filled with full of spores से भर जाता है. एंड मैनी बीज लूज बॉडी हेयर्स. सो आपने देखा है तो नोज़ेमोसिस डिजीज़ में विंग्स झड़ जाते हैं एंड एब्डोमेन स्टाउट हो जाते हैं एंड हेयर भी झड़ने लगते हैं. वर्कर बीज के हेयर्स भी झड़ने लगते हैं. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नोज़ेमोसिस. Now management of nozemosis. Good husbandry, strong colony helps withstand the damage. So strong colony होना चाहिए and feed the affected colony with Etacon M at the rate 455 milligram per liter of sugar syrup at weekly interval. So आपको Etacon M जो एक जो मिलता है एंटीबायोटिक, सो आप उसको यूज़ करना चाहिए 455 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ शुगर सिरप एट वीकली इंटरवल में यू हैव टू फीड दी बीज. एंड स्टरलाइजेशन ऑफ द ब्रूड बॉक्सेस एंड फ्रेम हाइव्स विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड फ्यूम्स एंड सोक्ड इन कॉटन और रैग एट 120 ml पर हाइव यूज़ करना चाहिए. और 40% ऑफ फॉर्मेलिन फ्यूम्स ओनली आफ्टर द क्वीन एंड द बी हैव ट्रांसफर टू द न्यू फाउंडेशन कूम्स. सो जो ओल्ड इन्फेस्टेड कूम्स होते हैं यू कैन डू 40% फॉर्मेलिन फ्यूम से यू कैन ट्रीट दैट. एंड टाइम ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी स्प्रिंग एंड विंटर. सैक ब्रूड डिजीज. इट इज़ अ सीरियस ब्रूड डिजीज ऑफ एपिस सेराना इंडिका एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस मोराटर एटाटुलस थाई strain during the spring season. So it will cause a spotty brood appearance and it is also called as pepper box symptom. And capping leads to tends to become darker and concave and punctured frequently. So the capping will be जो ऊपर का जो capping है it will become darker. So you can see in this image the caps becomes darker and then it becomes concave and punctured frequently. So you can even see the holes, punctures can be visible. And dead larvae dry up in brood cell forming loose scale or sac like. So dead larvae जो है it will dry up in the brood cell and it forms the loose scale or sac like
And as you can see this image, so it is having a sac like appearance on the surface of the brood, just like a polythene cover covering the brood. And brood die in prepupal stage but in unsealed stage. So brood will die in the prepupal stage but in unsealed stage, and dead larvae lie on their back, tip of head capsule turned upwards. The management of this disease is destruction of the frames. So you have to destruct the frames because it is a virus disease. And maintenance of strong and vigorous colony should be done, and sterilization of beekeeping equipments with KMNO4, potassium permanganate, and at the rate 50 gram per liter of water, followed by hot water dipping for the sterilization, and fumigation of a hive by formic acid 85%, that is 5 ml per hive, and caging the queen for 21 days for creating broodlessness condition. So you have to stop the viral infection further. So if you cage the queen for 21 days, so it will stop laying the eggs in the brood cells. So like that you can for 21 days, by isolating the queen, so you can reduce this disease. The next one is acute bee paralysis. It is caused by acute bee paralysis virus and affects only the adults, which only show sign of trembling, sprawled legs and wings. Occasionally they also exhibit partial hairlessness and in some case a black shiny appearance. So acute bee paralysis जब ये virus infect करता है, the bees become black in color and they lose the legs and विंग्स ऑल्सो, एंड हेयर भी झड़ जाता है वर्कर बीज के, एंड द डेथ रेट में बी हाई बट द डिजीज में बी माइल्ड और transient at times. Infected adult bees usually show the first symptom of acute paralysis in 2 to 4 days and then die within a 1 day. So इसका symptom जो है 2 to 4 days तक होता है फर्स्ट सिम्टम, एंड तुरंत 4 days के बाद वो मर जाता है विथिन 1 day. Now let us discuss about chronic. It is caused by the CBPV, and the infected adult take many days to die. So acute bee paralysis में it will die in only 1 day, within 1 day, but here chronic bee paralysis में the infected adult will take many days to die, and the adult have a bloated abdomen, and which is caused by the distension of the honey sac with the liquid. So bloated abdomen हो जाता है, and they do not fly, instead they crawl on the ground and exhibiting an abdominal trembling motion of the wings and the body. So ये abdomen जो है ब्लोट हो जाता है, एंड जो स्वेलिंग हो जाता है, एंड एक ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, एंड दे कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं पाते हैं, एंड एक ट्रेम्बलिंग मोशन होता है एब्डोमेन में, एंड एग्जिबिटिंग एन एब्डोमिनल ट्रेम्बलिंग मोशन ऑन द विंग्स एंड द बॉडी ऑल्सो. they become almost hairless, completely बाल completely झड़ जाते हैं, and appearing dark or almost black and shiny in color. dark black होते हैं and shiny हो जाते हैं. uninfected bees nibble at them and prevent their return to the colony. जो uninfected bees है, जब इन्फेक्टेड बीज जो डार्क कलर एंड हेयर भी जब झड़ जाते हैं, उस बीज को जब हेल्दी बीज ऑब्जर्व करते हैं, उसको निबल मतलब उसको हाइव के अंदर एंट्री लेने से ही मना कर देते हैं, एंड कम्प्लीटली उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं हाइव में एंटर होने से. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर. जो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर है, ये स्ट्रेस, मालन्यूट्रिशन एंड पैथोजेंस एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से होते हैं. जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो है अनफेवरेबल है, जब माल न्यूट्रिशन है, एंड पैथोजन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के वजह से
जो इसका पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाता है एंड कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इन चीज़ों के इन फैक्टर्स के वजह से अराइज होता है एंड इट इज़ कॉमन इन मेलिफेरा कॉलोनी। जो ये डिजीज़ है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर ये जो है एपिस मेलिफेरा में बहुत कॉमन है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन बाय वेरियस नेम्स दैट इज़ डिसअपियरिंग डिजीज़, स्प्रिंग ड्विंडल, मे डिजीज़, autumn collapse and fall dwindle disease and worker bees from a bee colony abruptly disappear। so सारे जो वर्कर बीज है कॉलोनी से कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। एग्जैक्ट कॉज इसका हम कम्प्लीटली अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। सो नेचुरल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना, नेचुरल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए इस कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर को से हाई पॉपुलेशन को बचाने के लिए। सो नेचुरल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस सच एज मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग बी हाइव, जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी को मेंटेन करना, उसको प्रॉपर फूड प्रोड्यूस करना, माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना, देन स्ट्रेस कम करना, जो टेम्परेचर मेंटेनेंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस एंड अवॉइडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन द सराउंडिंग फोरेज एरिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अवॉइड करना एंड पेस्ट एंड डिजीजेस जब इन्फेक्ट होते हैं कम्प्लीटली यू हैव टू burn and disinfect the hive boxes and maintain the healthy brood and the worker bees, healthy बी पॉपुलेशन। सो ऐसे करने से कॉलोनी कोलैप्स को डिसऑर्डर से द हाइव को हम बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड स्प्रेड दिस वीडियो विद द पीपल हु आर इन नीड एंड spread knowledge. Thank you and follow the YouTube channel Agri Study with Tasif.